प्रदायिनी ज्योतिर्मय, हो चहुं दिशि उद्घोष अभय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। प्रबल प्रवाहमयी नित नूतन, जीवन दायिनी सदा सनातन, वेद प्रणीता परम पुनीता, ये धारा अक्षय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। दयानंद से प्रेम भक्ति ले, हंसराज से त्याग शक्ति ले, धर्म भक्ति का राष्ट्र शक्ति का हो दिन मान उदय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। सुख समृद्धि इसकी लहरें, प्रेम शांति इसके तट ठहरे, सघन शांतिमय प्रबल कांतिमय, लिए अटल निश्चय, दिए विजय जय, दिए विजय जय। Students, please settle down. कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती सीढ़ियों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। These lines are proven absolutely true by Master Midhansh Kumar Gupta, a young CEO of Entry Precoder Private Limited since he was just 10 years old. From the preschooler age, our young talent started taking keen interest in computer programming, gaining many records on his name as youngest entrepreneur, web developer, social entrepreneur, and Corona warrior. Please give him a big round of applause. Now, the biggest achievement achieved by Master Midhansh Kumar Gupta was receiving Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar by our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji when he was just studying in 6th standard. Such a big achievement, sir. His records, achievements and appreciations are endless. So, without taking much time, I would like to put light on some of the achievements as Indian CSR Award, City Excellence Award, Name on World Book Records, India Book of Records, Exclusive World Records, Appreciations in Blockchain Technology IIT Madras, 50 Cutting Edge Technologies LinkedIn Learning Certificate, and yes, many, many more. So, we have such a gem in our city, and I, on behalf of our college, privileged to have you with us today for enlightening our students and showing them a guiding light for their present and future. Now I feel honored to extend my heartiest welcome to IIC Vice President Dinesh Arora ji, IIC Convener Dr. Rajiv Puri, ARIA Coordinator Professor Vishal, Head Department of Physics Kumar Rajiv, Internship Activity and Placement Coordinator Dr. Manav Agarwal, Social Media Coordinator Professor Vinod Kumar, IPR Coordinator Dr. Naveen Sood, and all the members of the staff. Now, I request Vice President Sir Dinesh Arora ji, Rajiv Puri sir, and all the members please extend floral welcome and token of gratitude to our Speaker of the Day, Master Midhansh Kumar Gupta. Students, please give him a big round of applause.
Thank you, everyone. Now I request IIC convener Dr. Rajiv Puri to please come on the dais and say few words. A very good afternoon to one and all present here. Very good afternoon. Good afternoon, sir. Very good afternoon. जोर से. Very good afternoon. So today's activity we have Midhansh over here. Midhansh छोटी सी उम्र में बच्चे इतनी अचीवमेंट्स ले चुका है. प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार मिलना और उसके अलावा इतने सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इसके नाम पे हैं. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही इज एन एक्सीलेंट प्रोग्रामर और अपनी कंपनी रन कर रहा है. ठीक है, इट्स अ बिग अचीवमेंट एट सच एन एज. तो सीखने के लिए कोई उम्र नहीं होती. ये चीज मैंने पहले ये सुना था कि लोग बूढ़े लोगों को सीखने के लिए बोलते हैं कि सीखने के लिए उम्र नहीं है, पर बच्चों के लिए भी सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है. ठीक है, यू कैन लर्न फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग. बहुत छोटी सी एज से भी आप लोग सीख सकते हो और हर चीज के लिए आपको प्रैक्टिस की बहुत जरूरत है. कल मैं एक कोई टीवी पे कुछ शो देख रहा था तो उसमें वो बता रहे थे कि कोई रोड सेफ्टी प्रोग्राम था और उस रोड सेफ्टी प्रोग्राम में उन्होंने अमिताभ जी को इनवाइट किया हुआ था, अमिताभ बच्चन जी को. द प्रोग्राम वाज स्केड्यूल्ड फ्रॉम 11 AM to 3 PM. 4 घंटे का प्रोग्राम था ये. एंड द पीपल ओवर देयर दे वर एक्सपेक्टिंग कि अमिताभ जी 11:15 के आसपास आ जाएंगे. ठीक है, कितने बजे पहुंचे होंगे अमिताभ जी वहां पे? 8:30 पहुंच गए थे वो सुबह 8:30 बजे. एंड व्हाट वाज द रीजन? द परफेक्शन. वो वहां पे गए, वहां पे कोई भी नहीं था, सिर्फ 4-5 बंदे जो टेक्निकल वाले थे वो लोग वहां पे अपनी तैयारियां कर रहे थे उस टाइम पे. एंड ही वेंट ओवर देयर. पीसीआर वैन में गए वहां पे. पीसीआर वैन इज बेसिकली अ कंट्रोल रूम फॉर द इवेंट्स. वहां पे गए, वहां पे देखा, उन्होंने कैमरास की पोजीशन नोट करी, किस किस पोजीशन पे कैमरास लगे हुए हैं. माइक के वॉल्यूम लेवल्स उन्होंने चेक किए. डायरेक्टर से बात की कि क्या क्या करना चाहिए. ठीक है, क्या किस तरह से इवेंट उन्होंने ड्राइव करना है और वो सारी तैयारी करी. एंड देन ही टुक अराउंड 15 to 20 मिनट्स फॉर द रिहर्सल. तो ये इवेंट शुरू होने से पहले की तैयारी है एंड दैट लेड टू द परफेक्शन. ठीक है, हम लोग सोचते हैं कि ठीक है जी अमिताभ है तो आएंगे और फटाक से हो जाएगा और कर लेंगे. ये फटाक से नहीं होता. इट नीड्स कंसिस्टेंट प्रैक्टिस. So is true with the programming also, right Midhansh? Absolutely. ठीक है ना. तो आप लोग बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं जो कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से हैं एंड दे आर न्यू टू द प्रोग्रामिंग. ठीक है, एंड आई विश टू से कि आप लोगों ने कभी हार नहीं माननी है. प्रोग्रामिंग सिर्फ एक छोटा सा लॉजिक है. अगर आपके माइंड में घूम गया तो घूम गया, नहीं घूमा फिर से ट्राई करो, नहीं घूमा फिर से ट्राई करो. ऐसी कुछ भी नहीं है कि जो चीज़ आप लर्न नहीं कर सकते. इट्स जस्ट अ लैंग्वेज. हिंदी भी सीखी है आप लोगों ने, पंजाबी भी सीखी है, इंग्लिश भी सीखी है, तो उसी तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी आप लोग सीख जाओ. Fine. So regarding this innovation council that we have established last year in our college, this innovation council is established by the Ministry of Education, Government of India. और इसका जो मेन मोटिव है वो यंग स्टूडेंट्स में एंटरप्रेन्योरशिप और स्टार्टअप स्किल्स को डेवलप करना है. इस इनोवेशन काउंसिल में हम आपको गाइड करते हैं कि आपने आइडिएशन कैसे करनी है, नए आइडियाज के बारे में कैसे सोचना है, उन आइडियाज पे कैसे काम करना है, उन आइडियाज के वर्किंग प्रोटोटाइप्स आपने कैसे तैयार करने हैं, उन प्रोटोटाइप्स को वैलिडेट कैसे करना है. एंड वंस यू वैलिडेट, उन प्रोटोटाइप्स के ऊपर कॉपीराइट्स, पेटेंट्स आपने कैसे रजिस्टर करवाने हैं. फिर उसके ऊपर आपने अपना स्टार्टअप कैसे शुरू करना है, उसके लिए फंडिंग कहाँ से अरेंज करनी है, उसकी टैक्सेशन स्ट्रक्चर क्या है. Every aspect of running a startup is covered under this IIC. So अभी आप लोगों ने recently एक IIC का ग्रुप ज्वाइन किया होगा. I did create that group just a couple of days ago. और उस ग्रुप में जो मेंबर्स होंगे उन मेंबर्स के लिए ये सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं we are going to conduct. ठीक है, और इसमें आप लोगों के लिए ये मैंडेटरी रहेगा कि आप ये सारी एक्टिविटीज रन करो. नॉट इवन यू आर नॉट गोइंग टू मिस इवन सिंगल एक्टिविटी. फाइन. ठीक है, और उसके लिए फिर हम लोग नेक्स्ट टाइम से फिर कुछ ना कुछ पनिशमेंट रखेंगे कि जो एक एक्टिविटी मिस करेगा अगली एक्टिविटी में वो समोसे या चाय स्पॉन्सर करेगा सबके लिए. So without taking much time, I would like to invite Midhansh to start his delightful thoughts.
Ah. Sure. So we have a presentation here from Mitansh. वेदांत नमस्ते। नमस्कार माननीय प्रधानमंत्री जी। मिधांश कुमार गुप्ता। मास्टर मिधांश कुमार गुप्ता। मास्टर मेधांश कुमार गुप्ता। मेधांश कुमार गुप्ता प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किए जाएंगे। तो हमारे साथ जालंधर से 11 साल के मिधांश कुमार इस वक्त जुड़ रहे हैं। ਵਿਦਾਂਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੰਡਨ ਤੱਕ ਵਿਦਾਂਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ। उम्र छोटी लेकिन कारनामे बहुत बड़े। जी हाँ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਿਤਾਂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਦੀ। ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ 12 ਸਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਮਿਤਾਂਸ਼ ਗੁਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਵਰਲਡ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। Age is an issue of mind over matter. If you don't mind, then it doesn't matter. I got bronchitis and that management. कोरोना काल में मैंने जो भी पोर्टल्स बनाए जैसे coronafever.com तो उसमें हेल्पलाइन नंबर जारी किया। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਈਆਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਸਪੀਚ ਦਿੱਤੀ ਐਂਡ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਵਾਰਡ ਮਿਲਿਆ। खुद अपनी कंपनी चला रहे हो? हाँ जी बिल्कुल। मैं CEO ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਬਣੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿ ਅੰਕਲ ਜੀ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ? ਹੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? Become an entrepreneur and show this world who you are. वेदांश आपको देखकर मुझे ये लगने लगा है कि पिछले कुछ वर्षों से किए गए भारत सरकार ने जो योजनाएं बनाई वो प्रयासों के कुछ अच्छे परिणाम निकल रहे हैं। आपने अपने काम से ये साबित कर दिया कि हमारे देश के बच्चों में जो योग्यता और उससे कितने बड़े बड़े बदलाव आ सकते हैं। मेरी तरफ से आपको, आपके परिवारजनों को बहुत बहुत बधाई। आपके सपने पूरे हो और आप बहुत प्रगति करें। बहुत बहुत धन्यवाद। There is a saying, behind every man there is a successful woman, and today I must say behind every child, every successful child there are proud parents. So Ma'am Monica, thank you so much. Thank you sir. And welcome to this college. And I'm sure the students are going to have a wonderful time with Midhansh. So over to you, Midhansh. Thank you. First of all, thank you very much, sir, for your kind words. I really appreciate. And good afternoon, everyone.
as you all know, I am Midhansh Kumar Gupta, and I am 14 years old. And firstly, I would like to extend my heartiest gratitude to the IIC, the institution's Innovation Council of DAV College, and a special thanks to the principal sir, Dr. Rajesh Kumar ji, and other special thanks, because of whom I am here today and I have got this opportunity to talk to all of you, and that he is none other than Dr. Kunwaraji sir, and he always appreciates me. वो मेरे को बहुत मोटिवेट करते हैं एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हिम. फर्स्ट ऑफ तो मतलब लैंग्वेज प्रेफरेंस पूछना चाहूँगा, हिंदी या इंग्लिश, आप किस में ज़्यादा सारे कंफर्टेबल हैं? हिंदी. इंग्लिश में बात करेंगे, ठीक है? Though I am 14 years old and I am प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार अवॉर्डी. एंड पहले मैं थोड़ा सा अपनी लाइफ जर्नी के बारे में ब्रीफ कर दूंगा कि मैंने आज तक क्या कुछ ऐसा किया है जो मैं आज यहाँ पे आया हूँ. एंड देन आई विल टॉक अबाउट द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, दैट आप उनको कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, मैंने कैसे अपनी कंपनी शुरू की, एंड कौन से जो मेन की टेकअवेज हैं कि हम अपने माइंडसेट को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं. वो भी एक बहुत बड़ा आज के डेट में टॉपिक है जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ. So first off, I am going to talk about my life journey, and it all began when I was 5 years old. तब मेरा प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट थोड़ा सा बना कि प्रोग्रामिंग क्या चीज़ क्या है, थोड़ा ट्राई करना चाहिए, I should try it. तो मैंने HTML से शुरू किया था. सभी HTML से शुरू करते हैं, वो अलग बात है. कंप्यूटर साइंस में कई लोग C से शुरू करते हैं, मैंने C बाद में की थी. तो मैंने HTML से शुरू किया, उसके बाद मैंने कई प्रोग्राम्स बनाए, कई वेबसाइट्स बनाई छोटी छोटी. एंड 9 साल की उम्र में मैं एक फुल स्टैक डेवलपर बन चुका था. मेरे को बूटस्ट्रैप आती थी, रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स, कई सारी जो चीज़ें होती हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट में रिक्वायर्ड होती हैं. तो एक जिसको हम कहते हैं फुल स्टैक डेवलपमेंट इज ऑल्सो रेफर्ड एज कि आपको शॉपिंग वेबसाइट बनानी आती है तो आप फुल स्टैक डेवलपर हो. तो मेरे को इतना काम आता था. एंड उस टाइम मैंने अपनी फर्स्ट जो प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं उनको बनाना मैंने शुरू किया. एंड जो मेरी पहली वेबसाइट थी वो थी इंटरनेशनल योगा डे पे. आप में से किस किस को पता है इंटरनेशनल योगा डे किस दिन होता है? 21 जून, राइट? तो मैंने उस दिन इस वेबसाइट को लॉन्च किया था विद द नेम एज 21stjune.com, एंड इट वाज द फर्स्ट वेबसाइट, द फर्स्ट प्रोफेशनल वेबसाइट व्हिच वाज लाइव इन माय लाइफ. एंड मेरे को उसके लिए मेरा नाम इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एंड वर्ल्ड रिकॉर्ड्स इंडिया में दर्ज हुआ था एज द यंगेस्ट वेब डेवलपर इन द एज ऑफ 9 years. एंड उसी टाइम मैंने अपनी फादर की कंपनी भी ज्वाइन की थी, सकार माइक्रो सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, एज द जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर. मेरे लिए तभी बहुत बड़ी चीज़ थी कि मैं अपने फादर की कंपनी में आ सका. एंड ऑफ कोर्स लाइक मैं सिर्फ अभी 9 साल का था और मैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ऐसे मतलब बहुत अच्छा लगता था मेरे को. उस टाइम पे मेरे को पता चला कि बिजनेस होता क्या है. मेरे बचपन से मतलब हर एक के बचपन से सपने बहुत बार बदलते हैं. कभी साइंटिस्ट बनना है, डॉक्टर बनना है, मेरे भी ऐसे ही थे, एस्ट्रोनॉट बनना है. पता नहीं था प्रोग्रामर बन जाऊंगा एंड CEO बन जाऊंगा. तो 9 साल की उम्र में मैंने अपने फादर की कंपनी ज्वाइन की थी. एंड मेरे को लातविया यूरोप के अंदर भी इनवाइट किया गया था एज द यंगेस्ट एंटरप्रेन्योर एट IBMC कॉन्फ्रेंस. एंड वहाँ पे मेरे को सम्मानित किया गया. एंड एट द एज ऑफ 9 वहाँ पे एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था उस कॉन्फ्रेंस का. क्या होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया? मोस्टली कॉमन 18 साल 18 years से ऊपर होने चाहिए. मैं सिर्फ 9 साल का था, हाफ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो और मेरा जो शेनेगन वीज़ा होता है जो यूरोप जाने के लिए 26 कंट्रीज़ का, तो वो मेरा फर्स्ट लाइफ का वीज़ा था जिसको हम कोरे पासपोर्ट पे वीज़ा लगना, और वो मेरा वीज़ा था बिजनेस वीज़ा, बिजनेस शेनेगन वीज़ा एट द एज ऑफ 9. तो ये मेरे लिए एक अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. उसके बाद फिर फास्ट फॉरवर्ड टू कोरोना. जब मैं 10 साल का था 2020 के अंदर, तो उस टाइम मेरे को लगा लाइक इट वाज अ डाउन इन माय लाइफ कि क्या मतलब मेरी जर्नी खत्म हो चुकी है, कि अभी तो स्टार्ट किया था, लाइक अभी मेरे को 2 रिकॉर्ड्स मिले थे, थोड़ी बहुत अचीवमेंट्स थी, तो इज इट द एंड? बट देन आई थॉट कि मैं अब अपने अंदर जो स्किल को डेवलप कर चुका हूँ, क्योंकि स्किल इज मोर इम्पोर्टेंट इफ यू वांट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. तो जो स्किल है, जैसे वेबसाइट डेवलपमेंट मेरे अंदर एक स्किल था, ग्रास्प करना चीज़ों को, वो अपने आप में एक स्किल होता है, एक टैलेंट होता है. तो वो जो मेरे पास स्किल था मैं उसको बहुत जगहों पे यूज़ कर सकता था.
जो मैंने रियलाइज किया कोरोना के अंदर, ऑल्दो मैंने अपनी लाइफ की एक तरह से जो शुरुआत है वेबसाइट्स बनाने की वो भी सोशल वर्क से की थी, क्योंकि एक तो मैंने 21june.com बनाया था, उसके अलावा मैंने एक स्कूल था होशियारपुर के पास जियान चब्बेवाल स्कूल, तो उनकी मैंने वेबसाइट पूरी जो स्कूल सॉफ्टवेयर होता है मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, तो वो मैंने डेवलप करके उनको डोनेट किया था। तो यहाँ से जर्नी शुरू हुई थी एंड मेरे को लगा दैट आई कैन परस्यू माय करियर इन सोशल वर्क, क्योंकि एंटरप्रेन्योर की जो एक पहचान होती है वो सोशल वर्क से बनती है। एक बिजनेसमैन जो होता है वो सिर्फ एक चीज को खरीदता है और आगे डिलीवर कर देता है, लेकिन एक एंटरप्रेन्योर अपनी लाइफ के अंदर सोशल वर्क को भी कनेक्ट करके चलता है। एंड इसी तरीके से ऑल्दो इट वाज नॉट प्लान्ड, तो मैंने फिर कोविड के अंदर कई सारी वेबसाइट्स पोर्टल्स डेवलप किए, जैसे coronafreeworld.com, आपने वहाँ इंटरव्यू में भी सुना उसमें वीडियो में, तो उसके अंदर एक टेलीमेडिसिन नंबर हमने लॉन्च किया था ताकि लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो मेडिसिन फैसिलिटीज हैं, टेलीमेडिसिन फैसिलिटीज, वो हम लोगों को प्रोवाइड कर सकें। एंड एक IVR नंबर लॉन्च किया था एंड ऑल ओवर इंडिया से कई डॉक्टर्स फॉर्चुनेटली कनेक्ट हो पाए फ्रॉम एम्स, सफदरजंग ऑफ दिल्ली, सो देयर वर मेनी डॉक्टर्स। एंड उसके अलावा जो पंजाब का मिशन फतेह आप सब जानते हैं, जो बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह, तो वो उसके अंदर भी मैंने जो उनका वेब बेस पूरा है जैसे missionfateh.com एंड उनकी जो मैंने 11 प्रिकॉशंस थी उन सब की सिंगल इंडिविजुअल वीडियोस बना के उन सबको भी लॉन्च किया था, जिस वजह से मेरे को बाय कैप्टन अमरिंदर सिंह सर मेरे को पर्सनल लेटर रिसीव हुई थी एंड मेरा आई एम द ओनली वन इन द वर्ल्ड, ऑल तो पंजाब का था पर वर्ल्ड कहने में क्या जाता है, तो मेरे को पूरे वर्ल्ड के अंदर आई वाज द ओनली वन हु वाज सर्टिफाइड फ्रॉम मिशन फतेह, सो आई वाज द ओनली वन। एंड जो जलंधर के उस टाइम नोडल ऑफिसर थे नवनीत कौर बल मैम, तो उनसे मेरे को एप्रिसिएशन मिली फॉर द मिशन फतेह के नोडल ऑफिसर थे। एंड उसके इन सब चीज़ों के लिए मेरा नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हुआ था एज द यंगेस्ट कोरोना वॉरियर एट द एज ऑफ 10 years। एंड मेरे को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से नवाजा गया, जो कि मेरे लाइफ का एक सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट, सबसे बड़ी अचीवमेंट थी कि आउट ऑफ लाइक करोड़ ऑफ एप्लीकेशन उसके अंदर से फिल्टर करते करते 2022 के अंदर सिर्फ 29 बच्चे सेलेक्ट हुए थे ऑल ओवर इंडिया से, जिसमें से पंजाब से मैं अकेला था। एंड इट इज रिकॉर्ड फॉर नाउ कि ना तो 2023 में ना अब जो 2024 के अंदर जो इन्होंने अवार्ड्स दिए हैं PMRPP के, उनके अंदर एक भी बच्चा नहीं था पंजाब से, तो आई एम द लास्ट टू बी फ्रॉम पंजाब इन द 2022। सो उस टाइम मेरे को ये मिला एंड मेरे को प्रधानमंत्री सर से, नरेंद्र मोदी सर से भी बात करने का मौका मिला, मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है अपने आप के अंदर। एंड 2020 के अंदर ही अगस्त में मैंने अपनी खुद का एक वेंचर, अपनी खुद की कंपनी शुरू की थी, एंटरप्रेन्योर प्राइवेट लिमिटेड, and I was the CEO, my parents are both the directors of the company। obviously मैं CEO ही बन सकता हूँ क्योंकि 18 से नीचे you cannot be the director of a company। तो उस टाइम मैंने उसको स्टार्ट किया एंड हमारा जो मेन मोटिव था वो ये था कि हम जो बच्चे हैं उनको हम प्रोग्रामिंग स्किल्स फर्दर डिलीवर करें। मेन एम ये था, लेकिन मतलब ऐसा नहीं था कि सिर्फ बच्चों को ही इनरोल करते हैं, हम जो बड़े हैं कोई भी अगर सीखना चाहता है, यहाँ तक कि 30-40 वाली एज भी, तो उन सबको भी हम प्रोग्रामिंग सिखाते हैं अब एंटरप्रेन्योर के अंदर। इसका मतलब ही ये है कि आप ये जो स्किल है कोडिंग का, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क ज़करबर्ग वंस सेड कि हर एक आदमी को, इंग्लिश में कहा उन्होंने ऑब्वियसली, कि हर एक आदमी को प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। प्रोग्रामिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अ लाइफ नाउअडेज, क्योंकि अभी जो नया युग आ रहा है वो इट इज ओनली बेस्ड ऑन प्रोग्रामिंग, ऑन कोडिंग, कंप्यूटर्स, एवरीथिंग लाइक दिस। फिलहाल तो हम फिर भी फिजिकली मिल रहे हैं, जैसे मेटावर्स हो गया, आप सबने सुना होगा AR, VR, तो ये सब अपकमिंग टेक्नोलॉजीज हैं मार्केट के अंदर। ब्लॉकचेन हो गया, ब्लॉकचेन के ऊपर मैंने IIT मद्रास से कोर्स किया है 1 year का एंड आई एम अ ब्लॉकचेन सर्टिफाइड एक्सपर्ट। एंड मैं कहाँ पे था, हाँ मैं अपनी कंपनी के बारे में बता रहा था, तो उससे आगे थोड़ा चलते हैं। तो उसके बाद फिर जैसे IIT मद्रास से मैंने कोर्स किया एंड मेरे को एडटेक अवार्ड मिला बाय द डायरेक्टर ऑफ बिट्स पिलानी। मेरे को इंडियन CSR अवार्ड, जो कि अगेन एंटरप्रेन्योरशिप पे बेस्ड है कि आप सोशल वर्क में काम कर रहे हैं। CSR जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फंड्स होते हैं ना,
कि बड़ी बड़ी कंपनीज को अपना 1-2% ऑफ द प्रॉफिट या 1-2% ऑफ द रेवेन्यू वो उनको इन्वेस्ट करना होता है कई अलग अलग जगहों पे, अलग अलग सोशल सेक्टर्स के अंदर। तो वो जो इंडियन CSR अवार्ड्स थे उनमें से मैं एक था, एंड मेरे को it was I received it from Dr. Kiran Bedi ma'am, who is currently the governor of Punjab, and by Rajat Sharma sir. कौन कौन जानता है रजत शर्मा सर को? सारे जानते हैं, बिल्कुल सारे जानते हैं। आपकी अदालत से हम सब ने उनको देखा है, सबको कटघरे में उन्होंने बिठा के रखा हुआ है, जिनके ऊपर तो नहीं भी केस चल रहा उनको भी उन्होंने रखा है वहाँ पे। तो उनसे मेरे को अवार्ड मिला, एंड अगेन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ थी, क्योंकि उनको टीवी में देखा हमने हमेशा कि वो बड़े तीखे तीखे सवाल पूछ रहे हैं लोगों को। उन्होंने 3-4 बार तो नरेंद्र मोदी जी को भी वहाँ पे बुलाया था, तो वो मैंने उनको सिर्फ टीवी में देखा। तो फर्स्ट टाइम उनसे मैं मिल रहा था, तो ऑफ कोर्स इट वाज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। एंड रिसेंटली मतलब जस्ट पिछले महीने मैंने एक अपना खुद का एक नया प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया है, विच इज़ बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, एंड उसके अंदर ब्लॉकचेन को मैंने इंटीग्रेट किया है ताकि हम EVM को, वोटिंग को और ज़्यादा सिक्योर बना सकें। इंस्टेड ऑफ कि हम वापस पिछले एरा में जाएं, बैलेट पेपर, इससे बेटर है कि हम जो अपकमिंग टेक्नोलॉजीज है उनको इंटीग्रेट करके हम अपने सिस्टम्स को और ज़्यादा सिक्योर बनाएं, जो कि EVM हम यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर। तो ये एक मेरा रिसेंट प्रोजेक्ट था। उसके अलावा मैंने बैक इन 2022 जब पंजाब के असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस थे, 117 जो कॉन्स्टिट्यूंसी के इलेक्शंस थे, तो उस टाइम भी मैंने अपना एक खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, विच वाज मिशन खुशहाल पंजाब, जिसके अंदर मैं पूरे पंजाब के जो 23 डिस्ट्रिक्ट हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में जा के मैंने लोगों को अवेयरनेस दी थी कि हमारे को वोटिंग करनी क्यों ज़रूरी है। किसी पार्टी का कैंपेन नहीं था, इट वाज जस्ट कि वोट क्यों डालना चाहिए, हमारी लाइफ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है वोट का। तो इस बेस पे वो मैंने उसको लॉन्च किया था, एंड इट वाज सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड। मैं 23 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर गया, वहाँ पे प्लांटेशंस भी की, सो इट वाज रियली फन। तो अब हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की। ये थी मेरी आज तक की जर्नी इन वेरी शॉर्ट। अगर मैं आपको बताना शुरू करूँ तो 2-3 घंटे लग जाएंगे, पर आई डोंट वांट टू टेक सो मच टाइम। एंड नाउ आई शुड बिगिन विद द एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स, कि किस तरीके से हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, हाउ कैन वी बी द डिफरेंशिएटर इन द मार्केट। उसका बहुत ही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, एक फंडामेंटल है एंटरप्रेन्योर बनने का, कि आप कोई एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फाइंड आउट करो सोसाइटी में। पहले तो अपनी सोच को बदलना सीखना चाहिए हमारे को, कि हमारे को लगता है कि आज इतनी सारी टेक्नोलॉजीज आ गई, बस इससे ज़्यादा क्या ही होगा, हो तो गया और क्या। लेकिन अभी एक और नया एरा आ रहा है, ब्लॉकचेन का एरा आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एरा आ रहा है, मशीन लर्निंग। तो ऐसे ये तो हमेशा चलती रहेंगी चीज़ें, एंड हमेशा प्रॉब्लम्स भी आएंगी। ऐसा नहीं है, ऐसा मेरे को नहीं लगता कभी दिन आएगा कि हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। प्रॉब्लम सोसाइटी में हैं, आज भी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स भी हैं, एंड जो इंसान उनको ठीक करता है, उनको उनका सोल्यूशन ढूंढता है, एंड उसको एक ऑफ कोर्स एक बिजनेस में भी कन्वर्ट कर पाता है एंड सोशल वर्क करता है, दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ बिजनेसमैन। अभी बहुत छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं कि एक बिजनेसमैन में और एक एंटरप्रेन्योर में क्या डिफरेंस होता है। बिजनेसमैन वो होता है जिसका मन करा बिजनेस करना है, तो बिजनेसमैन या तो बिल्कुल भी नहीं रिस्क लेते हैं, या फिर बहुत ही बड़ा अनकैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं जो उनको नहीं पता होता। लेकिन एक एंटरप्रेन्योर मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे कैलकुलेट द रिस्क्स एंड देन दे गो फर्दर। लेकिन वो एंटरप्रेन्योर आपको आज तक ऐसा नहीं मिलेगा जिसने कभी लाइफ में रिस्क नहीं लिया, जिसने कभी कुछ नहीं खोया। इलॉन मस्क की हम बात करते हैं, वो बड़ा ही सिंपल सा कहते हैं कि 2-3 उसने ट्राइज की थी ब्रीफ के अंदर की, तो वो लास्ट वाली जो उसकी ट्राई थी स्पेस एक्स के अंदर, तो वो सक्सेसफुल हो गई थी, जिस वजह से वो आज लिस्ट के अंदर 1st-2nd पोजीशन पे ही घूम रहे हैं, एंड रिचेस्ट मैन ऑफ वर्ल्ड के नाम से। एंड करंटली मेरे ख्याल अभी बर्नार्ड अर्नोल्ड इज द रिचेस्ट पर्सन, तो वो उनमें से एक है। उस लिस्ट के अंदर आना ही बहुत बड़ी बात है, टॉप 100 में आ जाओ वही बहुत है। तो उन्होंने भी फेलियर हर कोई बंदा देखता है।
एंटरप्रेन्योरशिप में कई ऐसे लोग देखे हैं कि उन्होंने फेलियर्स देखे हैं, उन्होंने बहुत कुछ खोया अपनी लाइफ में, लेकिन हार नहीं कभी भी माननी। एंड दैट वाज वेल सेड बाय सर कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। इवन मैम यू सेड दैट कि हमारे को हार कभी भी नहीं माननी चाहिए। भगवत गीता के अंदर भी एक श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते का रस्ते माँ फलेषु कदाचना माँ कर्मफल हेतु भूर्माते संगोष्ठ कर्मणि, जिसका मतलब क्या है कि जो मनुष्य है उसका धर्म है कर्म करना। हमारे को फल की इच्छा कभी भी नहीं रखनी चाहिए। फल क्या होता है, मतलब कुछ भी हो सकता है। हम डिजायर होते हैं सबके कि हमने जी ये काम किया तो हमारे को ये मिलना चाहिए, लेकिन हमें ऐसी इच्छा नहीं रखनी चाहिए। हमें सिर्फ गॉड, वी शुड हैव फेथ इन गॉड, भगवान पे विश्वास रखना है कि भगवान जो चाहेंगे वो करेंगे। हमने सिर्फ कर्म करते जाना है, हमने अपनी सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। धरती हमारे को इतना कुछ दे रही है तो हमें धरती को वापस कुछ देना है। दैट इज एन एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर उसको बोलते हैं जो अपनी सोसाइटी को वापस दे सके। सांस भी हम लेते हैं, ऑक्सीजन अंदर डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़नी पड़ती है। ऐसा तो नहीं कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर रख लोगे, इट इज नॉट गुड फॉर हेल्थ। कार्बन डाइऑक्साइड अगर अंदर रखनी शुरू कर दी तो वो हमारे को बाहर छोड़नी पड़ेगी। सो वी टेक इन वन एंड वी गिव आउट वन। तो इसी तरीके से हर चीज हमारे को जो हम ले रहे हैं वो हमें वापस देनी पड़ती है, सोसाइटी को, धरती को, जो हमारे भगवानों ने भी हमें कहा है, शास्त्रों में हमारे लिखा है। तो हमारे को इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि फल की इच्छा नहीं रखनी। अगर आप फल की इच्छा रखोगे और वो आपको फल ना मिला तो डिप्रेशन भी हो सकता है, फिर कुछ भी हो सकता है। हर एक को होता है ना कि मैंने मांगी तो अपने फादर से मर्सिडीज थे, दे मेरे को साइकिल दी BMW की, वो अलग बात है BMW की दे दी, लेकिन है तो साइकिल ना। तो आपको बहुत अजीब फील होगा कि मैंने क्या मांगा था और मेरे को क्या मिला। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे को अपनी लाइफ में जरूर इसके ऊपर फोकस करना है अगर हम एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन होता है कि आप मतलब मोस्टली फ्रॉम द स्टूडेंट साइड आपके भी कईयों के दिमाग में चल रहा होगा कि आप एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट तो कर रहे हो कि सबको एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए, लेकिन फिर जॉब, अगर जॉब वाले होंगे ही नहीं तो फिर एंटरप्रेन्योर क्या करेंगे। वो उनका क्वेश्चन बिल्कुल सही है, लेकिन वो कहीं ना कहीं गलत भी है, क्योंकि भगवान ने एक बैलेंस बना रखा है। ऐसा नहीं हो सकता कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन जाए। इस रूम की ही अगर हम बात करें तो इट इज नॉट पॉसिबल कि ऑल ऑफ अस कैन बिकम एन एंटरप्रेन्योर। हर एक का स्टार्टअप सक्सेसफुल नहीं होता, बहुत सारे फेल हो जाते हैं। तो वो एक बैलेंस बना हुआ है। लेकिन जो हमने अपनी लाइफ में गोल सेट करना है वो हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप का रखना है। क्यों? अभी कईयों का गोल होता है कि जी मेरे को 50 LPA 60 LPA गूगल माइक्रोसॉफ्ट में जाना है, वहां पे मैंने काम करना है, एक्सेंचर, पता नहीं कितनी सारी कंपनीज है, लोगों के सपने होते हैं। लेकिन हाँ आपका सपना है, लेकिन इसको आप अपना मेन गोल, मेन फोकस मत बना के चलो। मेन गोल शुड बी टू बिल्ड योर ओन स्टार्टअप, बिकमिंग एन एंटरप्रेन्योर। क्यों? उसका कारण ये है, जब आप एक एंटरप्रेन्योर के रास्ते पे चलते हो ना कि आपने एक एंटरप्रेन्योर बनना है, अपना एक सेटअप करना है, ऐसा नहीं होता पहले ही दिन आपके पास 100 एम्प्लॉइज होंगे और आप सबको काम कह रहे हो, मैनेजर्स होंगे आपके पास, एक अच्छा खासा वर्क स्पेस होगा। नहीं, आप जब स्टार्ट करते हो तो आपको ये भी नहीं पता होता कि वो चलेगा भी या नहीं, ठीक है ना। तो उस केस के अंदर अब आप सारे स्किल्स खुद सीखते हो। हाउ टू मार्केट योरसेल्फ, आप मार्केट में कैसे जाओगे, आप अपने प्रोडक्ट को कैसे लोगों के सामने पेश करोगे, आप अपना प्रोडक्ट कैसे बनाओगे। अब हम लेट्स से एक IT कंपनी की बात करते हैं जो एक वेबसाइट्स बनाकर सेल करती है, कस्टमाइज्ड वेबसाइट्स ले लो। तो अब उनको, वो जो ओनर है उसको क्या कुछ सीखना पड़ेगा, वेबसाइट बनानी आनी चाहिए, अपने आप को मार्केट करना आना चाहिए। यहाँ तक कि बहुत ही छोटा सा जो स्किल होता है कि कई बार आपको अपने ऑफिस की सफाई भी खुद करनी पड़ सकती है, क्योंकि पहली बार में आप ऐसे एम्प्लॉयज नहीं रखते, ठीक है ना। तो आपको सारा कुछ खुद करना पड़ता है एक बार अपने जो स्टार्टअप है उसको बिल्ड करने के लिए। अब जब आप इतने सारे स्किल्स सीखते हो, अगर भगवान ना करे कि अगर आपका जो स्टार्टअप है वो फेल हो भी जाता है, तो आपने जो इतने सारे स्किल्स सीखे हैं उनको आप जॉब्स के अंदर यूज कर सकते हो। अपने रिज्यूमे में आप लिख तो सकते हो ना इतने सारे स्किल हैं, एक्चुअली आप वो स्किल्स को लिख सकते हो, नॉट फेकिंग देम ऑन योर रिज्यूमे। यू कैन एक्चुअली राइट कि हाँ मेरे को ये चीजें आती हैं।
बहुत ही सिंपल सी चीज़, अगर मान लो वो कंप्यूटर्स का काम कर रहे हैं, उन्होंने नए कंप्यूटर्स लाए, सेटअप किया, विंडोज इंस्टॉल की, लोगों को विंडोज नहीं इंस्टॉल करनी आती है अभी तक, वो अपनी एक वो छोटा सा वेंचर स्टार्ट कर सकते हैं कि एक छोटी सी कंपनी एक तरह से बना ली कि हार्डवेयर शॉप हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें होती हैं जो हम सीखते हैं जब हमने एक एंटरप्रेन्योर बनना होता है। लेकिन अगर हम फेल हो भी जाएं तो जॉब जो उससे एक स्टेप नीचे है सिर्फ, तो हम एटलीस्ट उसके अंदर उन सब स्किल्स को यूज कर सकते हैं। वो जो आपने इतनी सारी नॉलेज गेन की थी गूगल से, यहाँ पता नहीं कहाँ से नॉलेज गेन की थी, आपने रिसर्च की अपने फील्ड के अंदर कि मैं किस तरह से इस फील्ड में सक्सेसफुल हो सकता हूँ, किस तरह से कंपनी रजिस्टर, ये वो पता नहीं क्या कुछ, आपके लिए कितने सारे रास्ते खुल जाते हैं। अगर आप अपने आप को एक एंटरप्रेन्योर बनाना चाहते हो तो आपको कई सारे स्किल्स सीखने पड़ेंगे और उनको आप बाद में यूज भी कर सकते हो। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है अगर आप अपना मेन गोल एंटरप्रेन्योरशिप बनाते हो और ना कि सिर्फ जॉब। क्योंकि अगर आपने जॉब अपना गोल बनाया और वो कंपनी की डिमांड है, आपने एक लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपर, अब सारे कंप्यूटर वाले नहीं है यहाँ पे, तो ऑफेंड मत हो जाना, मैं एग्जांपल कंप्यूटर वाली दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो लेट्स से फ्रंट एंड डेवलपर की उन्होंने डिमांड की कि हमारे को एक फ्रंट एंड डेवलपर चाहिए, उसको हम 50 LPA सैलरी देंगे ऑन द बिगिनिंग। तो आपको बहुत अच्छी बात है, 50 LPA मिल रहा है, तो आपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखी, आप वहाँ पे गए, बाई चांस आपको रिजेक्ट कर दिया, आपके पास रहा क्या, आपने फिर से और कंपनीज में अप्लाई करना शुरू किया, वो कंपनी तो बची नहीं, अब आपकी जो ड्रीम जॉब थी वो तो चली गई और कहीं आपको देखना पड़ेगा। लेकिन अगर आप अपना खुद का एक सेटअप करोगे तो उसमें आप सिर्फ फ्रंट एंड डेवलपमेंट नहीं, आप शायद फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखो। उसमें क्या है, अगर आप किसी कंपनी में जाओगे तो वो आपको 100% रख लेंगे, आपको इतने सारे स्किल्स आते हैं, आपने अपना एक स्टार्टअप कोशिश तो की कम से कम। लेकिन अगर आप पहला आपका स्टार्टअप फेल हो गया तो ऐसा मैंने शायद ही कहीं होते हैं जो बस हार मान लेते हैं, लेकिन कई लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं, शार्क टैंक के ऊपर भी कई लोग स्टोरीज लेके आते हैं कि मैंने ये भी स्टार्टअप किया था, ये भी किया था, ये भी किया था, फाइनली ये वाला बन गया जिस वजह से मैं शार्क टैंक पे पिच करने आया हूँ। ऐसे भी कई होते हैं। तो इतने सारे स्टार्टअप्स उनके बने, फेल हुए, कईयों ने तो पहले स्टार्टअप के अंदर भी अच्छा खासा एग्जिट खुद ही ले लिया अपनी कंपनी से, ऐसी भी एग्जांपल्स होती हैं। तो इस तरीके से एंटरप्रेन्योरशिप काम करती है। आपने अपने माइंडसेट को चेंज करना है, दैट्स ऑल। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करने में सक्सेसफुल हो जाते हो, then you can indeed become a successful entrepreneur। ये सबसे इम्पोर्टेंट स्किल है अपने माइंडसेट को चेंज करना। अगर आप अपने माइंडसेट को चेंज करोगे तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। इवन कंप्यूटर लाइन के अंदर एक ये भी माइंडसेट है कि सबसे पहले जब हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सीखनी शुरू करनी है, सी से शुरुआत करेंगे, मदर ऑफ ऑल लैंग्वेजेस। सी के बाद C++, C#, हो सकता है कोई और भी हम उसके अंदर स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से हमने वो पूरा एक फ्लो चार्ट टाइप सा बना रखा होता है कि सी से शुरू करेंगे और कुछ करेंगे। लेकिन मैं अपना बताऊं, मैंने पहले फुल स्टैक डेवलपमेंट सीखी इन PHP, उसके बाद मैंने जावा सीखी, उसके बाद मैंने जाके सी सीखी है एट द एंड। तो इस तरह से भी ये जो मिथ्स बने हुए हैं, इनको भी हमारे को ब्रेक करने की जरूरत है। सीखने की कोई उम्र नहीं होती, चाहे वो 5 साल का बच्चा है, चाहे वो 50 साल का है, कोई 60-70 साल के हैं, तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती। और अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो तो आप जो कुछ सीखोगे वो अपने आप में ही एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपके पास इतनी सारी नॉलेज होगी अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनते हो। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो एक मिथ बना हुआ है कि सोसाइटी के अंदर जॉब्स ज़्यादा प्रेफरेबल हैं, बट एक्चुअली अगर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे तो जॉब कहाँ से आएगी। लेकिन अगर जॉब कोई लेना ही नहीं चाहता तो एंटरप्रेन्योर भी क्या करेगा, अकेला ही थोड़ी ऑफिस के अंदर मत्था मारता रहेगा, ठीक है ना। तो उस केस में ये सारा एक जो बैलेंस बना हुआ है, तो अगर आप जॉब करना चाहते हो तो ट्राई टू बिकम नॉट अ जॉब सीकर बट अ जॉब गिवर। क्योंकि एक एंटरप्रेन्योर 10 एम्प्लॉयज भी रखे तो उसने 10 जॉब्स जनरेट की। एंड हमारी जो सरकारें हैं वो भी इस चीज़ को लेकर बहुत सीरियस हो रही हैं आज के डेट के अंदर कि एंटरप्रेन्योरशिप को हमें प्रमोट करना चाहिए, हमें पूरे देश के अंदर इसको फैलाना चाहिए, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत इंपॉर्टेंस है आज के डेट में एंटरप्रेन्योरशिप की। जबकि बहुत साल मतलब इन द पास्ट सेंचुरी लोग बेवकूफ बोलते थे जिसने बिजनेस शुरू किया कि तू ये क्या कर रहा है, तेरे को जॉब अगर अच्छी खासी कहीं होते हैं जो
जॉब छोड़ के उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया, तो बहुत क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है लोगों को। लेकिन इट इज ऑलवेज नॉट इम्पोर्टेंट, यू शुड बिलीव इन योरसेल्फ फर्स्ट। कोई आप पे विश्वास करता है नहीं करता, आप खुद पे तो विश्वास कर रहे हो ना। अगर आप खुद पे विश्वास करना सीख गए तो आप अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकते हो। There are wonders to do for you in your life ahead. And key takeaways जो आज के 3 key takeaways, firstly, कभी भी हार नहीं माननी है। जितने मर्जी फेलियर्स हो, जो मर्जी हो, हार नहीं माननी है। अगर हम हार मान लेंगे तो दुनिया जीत जाएगी, ठीक है ना। इसलिए हमें कभी भी हार नहीं माननी है। सेकेंडली, बिलीव इन योरसेल्फ। इफ वी बिलीव इन आवरसेल्व्स देन वी कैन डू वंडर्स। अगर हमें खुद पे विश्वास करना आता है तो ही तो हम कुछ कर सकते हैं ना। अब आप दूसरों को कह रहे हो कि जी हमारा प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप हमारे पे फेथ कीजिए, आपके बाल उग जाएंगे। हम वहाँ पे ऑनियन का वो ऑयल बेच रहे हैं कि आपके बाल उग जाएंगे, आप विश्वास कीजिए। खुद को आपको विश्वास नहीं है, अपने घर के अंदर तो आप अच्छे खासे ब्रांड वाले यूज करते हो, खुद पे तो विश्वास करो ना। कम से कम अपना प्रोडक्ट कम से कम खुद तो यूज करो। तो आपको खुद पे, अपने स्टार्टअप्स पे, अपने क्लोज जो लोग हैं उन पे आपको फेथ करना आना चाहिए, बिलीव होना चाहिए उनके अंदर, अपने भगवान पे बिलीव होना चाहिए कि हमें कर्म की, हमने सिर्फ कर्म करना है, फल की इच्छा नहीं रखनी है। तो कर्म अगर हम करते चलेंगे तो भगवान आपका कर्म कभी जाया नहीं जाने देगा, कुछ तो देगा आपको भगवान ना। जैसा आपने कर्म किया आपको फल जरूर मिलेगा, बस आपने उसकी इच्छा नहीं रखनी है। एंड थर्डली, एंटरप्रेन्योरशिप इज अ ग्रेट स्किल टू लर्न। मैं एंटरप्रेन्योरशिप को एक स्किल मानता हूँ, क्योंकि अगर आपको एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो आपको स्किल सेट सीखना पड़ेगा। एंड स्किल्स कोई आपसे छीन नहीं सकता। जॉब आपसे छीनी जा सकती है, लेकिन स्किल, आपका टैलेंट आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। इसलिए अपने अंदर स्किल्स को कल्टीवेट करना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्रोग्रामिंग इज इंडीड अ ग्रेट स्किल। मैं प्रोग्रामिंग के बैकग्राउंड से हूँ तो ऑफ कोर्स प्रमोट तो करूंगा ना। तो प्रोग्रामिंग सीखनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप प्रोग्रामिंग सीखोगे तो हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, एंड उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप प्रोग्रामिंग का यूज कर सकते हो, ताकि आप अपनी एटलीस्ट अपनी जिंदगी को तो आसान बनाओ। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छा प्रोडक्ट इन्वेंट कर दिया, आपने कुछ इनोवेशन लाई अपने प्रोडक्ट के अंदर, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कोई इनोवेशन अगर आप लाए हो, देन यू कैन ऑफ कोर्स बिकम एन एंटरप्रेन्योर। एंड 3 टेकअवेज बताए थे, बोनस टेकअवे दे देता हूँ कि अपने जो मेन गोल है उसको आपने हमेशा एंटरप्रेन्योरशिप बना के रखना है। नेवर थिंक ऑफ जॉब फर्स्ट। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर बनने की सोचोगे, मैं जॉब्स को गलत नहीं कह रहा, क्योंकि जॉब्स के बिना एंटरप्रेन्योर भी क्या ही कर लेगा, कुछ कर ही नहीं सकता। जॉब्स भी तो चाहिए ना, डेवलपर्स तो चाहिए ना अपने अंडर। तो अगर आप एंटरप्रेन्योर बनने की कोशिश करोगे और अगर नहीं बन पाए तो जॉब तो एटलीस्ट आपके लिए गारंटीड ही हो जाती है। दे आर गारंटीड फॉर यू एटलीस्ट, क्योंकि आपने जो स्किल सीखा है वो कोई नहीं सीख सकता। एंड स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। Thank you, our young admirer. Now I would say many of the students want to be entrepreneur. Can I see the raising hands of my students? Who wants to be entrepreneur now? So have the skill, have the passion, have the hard work, and try till you succeed. Am I right, Badansh? So thank you so much. Now I would like to request Dr. Rajiv Puri, IIC convener, to please come on the dais and give the Thanksgiving speech for our young admirer. क्वेश्चन मैं पूछ सकता हूँ? या श्योर। मैं खुद ही पूछना चाहूँगा कि 14 में ही सीईओ, 23 साल के बच्चा जो है पीजी करता है, पोस्ट ग्रेजुएशन करता है ना, तो डोंट यू थिंक बाय दैट टाइम यू विल रिटायर? 10 years still to go, right? Yes, right. And how do you manage your studies and your business together? वो कैसे होता है? प्लीज, बच्चों के मन में हो सकता है सवाल वो ही है। लेट मी क्लियर, मैंने अपने स्कूल के बारे में नहीं बताया। तो मैं अभी मुंबई से स्टडीज कर रहा हूँ एंड बिरला ब्रेनियक्स। अब आपको लग रहा होगा मुंबई से नहीं आया मैं सुबह सुबह फ्लाइट पकड़ के। मैं होम स्कूलिंग कर रहा हूँ ऑनलाइन। तो मेरी शाम को क्लासेस होती हैं, मेरे एग्जाम्स भी ऑनलाइन होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होगे तेरे तो मजे हैं, एग्जाम्स ऑनलाइन हैं, पर ऐसे कोई मजे वाली बात नहीं है। हमारे को वहाँ पे हम सर्वेलेंस में होते हैं कि अगर मान लो होते हैं ना, कई लोग कोशिश करते हैं, बहुत चालाक होते हैं, मैं नहीं बताऊंगा कौन सी कोशिश करते हैं,
तो वो कोशिश कर गूगल खोलते हैं, गूगल का वाइट स्क्रीन ऐसे आती है एकदम से, तो टीचर्स अपना एक्सपीरियंस बताना शुरू करते हैं। मेरे को 15 साल का एक्सपीरियंस, मेरे को दिख रही वाइट स्क्रीन आपकी, बंद करो उसको, एग्जाम शुरू करो अपना। क्योंकि हमारे को बहुत ही डार्क साइड काम मिलता है, ताकि इट इज़ वेरी इजी फॉर देम टू नो कि आप एग्जाम में चीटिंग करने की कोशिश तो नहीं कर रहे हो। एंड 7th तक मैं सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल में था, डिफेंस कॉलोनी, एंड अब मैं ऑनलाइन स्कूलिंग कर रहा हूँ, सो नाउ इट्स जस्टिफाइड। मैं 7th तक जस्टिफाई नहीं कर पाता था, लोग कहते थे आप पढ़ कैसे रहे हो और अपना साथ में बिजनेस भी देख रहे हो, सोशल एक्टिविटी भी कर रहे हो। तो नाउ एटलीस्ट आई कैन जस्टिफाई कि मेरा स्कूल शाम को होता है एंड इट इज़ ऑनलाइन स्कूल, सो ऐसी कोई मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं होती, मैं दिन के टाइम में मैनेज कर लेता हूँ। एंड आई लेफ्ट दी फिजिकल स्कूल बिकॉज ऑफ ऑल दीज, लाइक अब मॉर्निंग के अंदर आप सब अवेलेबल होते हो, तो अगर आप सबके पास मेरे को आना है, आप सबके साथ इंटरेक्ट करना है, तो मेरे को दिन का टाइम और मॉर्निंग का टाइम फ्री चाहिए। शाम को सारे लोग वापस से घर चले जाते हैं, तब मैं एक 8th का स्टूडेंट बन जाता हूँ एंड मैं बिरला ब्रेनियाक से फिलहाल स्टडी कर रहा हूँ। दैट्स द आंसर सर। वेरी गुड, थैंक यू। एक क्वेश्चन, प्रोग्रामिंग में आपका इंटरेस्ट कैसे बना? सर एक बड़ी सिंपल सी थोड़ी लॉन्ग स्टोरी है, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। तो मैं जब 5 साल का था, तो मैंने जैसे बताया मैं सेंट जोसेफ बॉयज स्कूल में था, तो मेरे स्कूल से हार्डली लाइक 10 कदम कहने को, लेकिन 100 कदम लगा लो तो मेरे पेरेंट्स का ऑफिस है वहाँ पे, वर्क प्लेस जहाँ पे है। तो मैं स्कूल से सीधा उनके वर्क प्लेस पे चला जाता था, क्योंकि हमारा घर 6-7 किलोमीटर दूर है, इसलिए मैं उनके ऑफिस में ही होता था। एंड वहाँ पे अब क्योंकि मेरे पेरेंट्स भी IT प्रोफेशनल्स हैं, सॉरी फॉर नॉट मेंशनिंग, मैं भूल गया था, तो मेरे पेरेंट्स भी IT प्रोफेशनल्स हैं, वो अपनी खुद की कंपनी रन कर रहे हैं, जो मैंने 9 साल की उम्र में ज्वाइन की थी। तो मेरे फादर उसको 2008 से रन कर रहे हैं अपने वेंचर को। एंड उनको मतलब वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते थे उस टाइम पे 6 मंथ ट्रेनिंग्स जो होती हैं तो वो हुआ करती थी, तो वो जो बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते थे प्रोग्रामिंग स्किल्स बहुत कुछ वो देखते थे, मैं भी उनको देखता था। मेरा अपना जो कंप्यूटर लैब में एक कंप्यूटर रिजर्व्ड होता था, रिजर्व फॉर गेमिंग, तो उनके साथ ही बैठा होता था, तो मैं उनको देखता रहता था क्या कर रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, वो jQuery में बड़े अच्छे खासे इफेक्ट लग जाते हैं, तो मेरे को लगता था क्या अजूबा बना रहे हैं। तो वो अजूबा मैंने सोचा मैं भी सीखूं कि होता क्या है, तो मैंने खुद से ही जैसे W3 स्कूल से थोड़ा बहुत HTML का खुद से करना शुरू किया, छोटी छोटी वेबसाइट्स खुद से, नॉट वेबसाइट लाइक सिंगल पेजर, CSS में बड़ी सिंपल सी बना के वो मैंने बनाई। एंड मेरे पेरेंट्स को लगा कि बहुत कुछ ये कर सकता है, पर उन्होंने कभी सोचा नहीं था ना, उन्होंने कभी मेरे को प्रेशर दिया कि हम भी IT में, तूने भी IT में जाना, उन्होंने मेरे को ऐसा कभी नहीं कहा। तो उन्होंने मेरे को फर्दर जो मेरे को और सिखाना शुरू किया कि किस तरीके से प्रोग्रामिंग करते हैं, फुल स्टैक डेवलपमेंट, उन्होंने वो सारा कुछ मेरे को सिखाया। सो इस तरह से मेरा इंटरेस्ट बिल्ड हुआ था जब मैं सिर्फ 5 साल का था। Any questions from Any students? other questions? Yes, students, any other question regarding blockchain or anything else you want to ask? Please. फुल स्टैक की कौन कौन सी स्किल्स है आपके पास? फुल स्टैक डेवलपमेंट मेरे पास अराउंड 17 to 18 लैंग्वेजेस मेरे को आती हैं, तो HTML, CSS, Bootstrap, jQuery, JavaScript, PHP, Core Java, Advanced Java, Python एंड C, ये सारे मतलब ये मेजर है प्रोग्रामिंग जो मेरे को आती हैं। एंड बाकी DML, MySQL ऑफ कोर्स वो मैंने सीखा हूँ। थैंक यू। Yes, please. It's not about coding or anything, but I want to ask कि जैसे suppose that हम कुछ गलती कर देते हैं in like life, Yes. तो जैसे कोडिंग में भी आप कुछ फॉल्स हुए होंगे कि आपने गलती की होगी, तो उसको अब मोटिवेट कैसे करें अपने आप को कि लाइक ओके दोबारा अगर मन ना करे कि वो चीज़ दोबारा स्टार्ट करनी हो, मतलब जैसे फेल हो जाता है कोई बंदा, तो वो कैसे अपना स्टैंड ले, मतलब वापस वो कैसे ट्रैक पे आए? Did you face such problem in your life? सच प्रॉब्लम तो मेनली जैसे कोविड के टाइम पे हमने फेस की, बहुत क्रिटिसिज्म फेस किया मीडिया पर्सन से, बहुत लोगों से, एंड मेरे इवन फादर को कई लोगों ने कहा कि आप अपने चाइल्ड का बचपन छीन रहे हो, बहुत कुछ सुनने को मिला, बहुत लोगों ने डिमोटिवेट किया। पर मोटिवेशन एक तो आपको अपने सराउंडिंग से मिलती है, यू शुड कीप गुड सराउंडिंग्स, लाइक सराउंडिंग में कमरा नहीं कह रहा, कमरा साफ रखो, मैं ये कह रहा हूँ फ्रेंड्स अच्छे होने चाहिए आपके,
यू शुड हैव अ लाइक गुड लाइक कॉलेज के अंदर आप हो तो वहाँ पे आपका एक अच्छा फ्रेंड सर्कल होना चाहिए जिनके साथ आप कुछ शेयर कर सकते हो। आपके पेरेंट्स आप उनको कन्विंस करो अगर सपोर्टिव नहीं है तो वो सपोर्टिव होने चाहिए, वो एक बहुत बड़ा प्ले करते हैं रोल आपकी लाइफ के अंदर, आपके करियर के अंदर। एंड लास्ट जो मैंने की टेक अवे दिया था कि आपको खुद के अंदर विश्वास होना चाहिए। अगर आप खुद में विश्वास रखते हो कि कोई बात नहीं, अगर फेल हो गए तो क्या हुआ, वी कैन ट्राई वन मोर टाइम रखो, ज्यादा मत रखो ताकि आप हर बार दोबारा वन मोर टाइम कह सको। तो अगर आप ऐसा सोचोगे देन इंडीड यू कैन कम बैक टू द ट्रैक। एंड ट्रेन डीरेल हो जाती है, उसको वापस ट्रैक पे नहीं ला सकते, लेकिन हम अपनी जिंदगी के अंदर डीरेल हो जाएं तो जरूर वापस ट्रैक पे आ सकते हैं। आई होप यू गॉट द आंसर। Anyone else? Thank you. Thank you, Midhansh. It is said that necessity is the mother of all invention, and I must say कि curiosity is required, ठीक है, और उसी से ही इन्वेंशन आती हैं। अगर आप किसी चीज़ के लिए क्यूरियस हो तभी उस चीज़ को लर्न कर पाओगे। अगर क्यूरियोसिटी मिसिंग है आपके अंदर तो then it's very difficult for you to learn the new things. So today's event, that's all about the today's event, and I on behalf of the Institutions Innovation Council and DAV College Jalandhar express my heartfelt thanks to Midhansh and Monica ma'am for sparing your valuable time and coming over here and motivating and inspiring our young fellows. So I guess आप लोग भी अब कुछ ना कुछ तो यहाँ से टेक अवे जरूर लेके जाओगे, ठीक है। प्रोग्रामिंग तो हमने अभी कुछ नहीं सिखाई पर मोटिवेट जरूर कर दिया है। Thank you so much and thank you so much Kanwar sir for arranging this wonderful lecture. And after this, day after tomorrow, we are again having another lecture, and that is regarding the health, lung care और उसके लिए जो pollution control के innovative methods हैं उसके बारे में हम लोग discuss करेंगे। It's at 10 AM. थोड़ा सा और time रखा है आपकी classes के बारे में, पर क्योंकि guest ने दिल्ली से आना है तो he was only available at 10 AM. So I wish कि आप लोग सब वहाँ पे जरूर हो। और उसके बाद on 12th we are having a Yuva Samvad, again an important lecture on the entrepreneurship, and there will be making you aware about the various government schemes which are available for running your startup, and what are the different government aids in terms of consultancy, in terms of finance and all, जो government आपको help कर रही है। So with these words I express my heartfelt thanks to the teaching member, the non-teaching staff and the students for this wonderful session. Thank you so much. There is a QR code displayed outside this venue. तो आप वो लोग QR code scan करके उस पर feedback जरूर भर देना, और जो लोग feedback भरेंगे सिर्फ उन्हीं को certificate मिलेगा। ठीक है, it won't take more than a minute or so to fill up the feedback.